Good morning, all of you. Uh, Today I am going to take your first class of IP. So in first class, I am going to the introduction about the IP. First of all, the subject name is IP. What is the full form of IP? Informatics practices. So first of all, I am going to tell you why you going to read this subject or study this subject IP. Actually, in future arena, you know that today I am going to take your online classes, and have you heard about the Zoom app, and so many apps are there, and you already filled your form in Google Doc form. So these all everything which is used on computer making by the programming languages. Everything on a computer. It, uh, if it is your game, this is also making by a programming language. If it is your window, this is also making by a programming language. Even your Zoom app, this is also making by a programming language. If you seeing this YouTube video, this is also making by the programming language. If you fill your Google Doc form, this is also making by the programming language. So everything on this system or this computer made by a programming language. So in this IP subject, you are going to study about the programming languages. There are so many programming languages in this world, like in our general languages which we speak in front of you. We generally speak Hindi and English. ठीक है, हम जनरली हिंदी एंड इंग्लिश का यूज करते हैं, बट दैट्स द फैक्ट दैट देयर आर ओनली टू लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड. नो, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड. Some is Spanish, some is French, some is Russians, Chinese, Japanese. So many languages are there. Same as in computers, there are so many programming languages. Okay, what the purpose of these programming languages? इनका पर्पज क्या है? ये कंप्यूटर्स को ऑर्डर्स देते हैं in the form of our syntax. How? Have you know about the computer? हमारा कंप्यूटर तीन चीजों से बना हुआ है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. You know about it very well. ठीक है, we give some input to computer process on it and give us the output. But how computers works on it? Computers पर किस भाषा में बात करता है? इन सब के लिए वो जिस लैंग्वेज का यूज करता है वो होती है मशीन लैंग्वेज. ठीक है, सो मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में लिखी जाती है? इट इज इन अ बाइनरी फॉर्म, लाइक 101010 इन बाइनरी फॉर्म. सो व्हाट द मीन ऑफ बाइनरी? व्हेन यू वांट टू राइट डाउन आई, ओनली आई, योर इंग्लिश वर्ड लाइक दैट आई, बट इन बाइनरी लैंग्वेज इट्स वर्क लाइक दैट 10101010. So it is not possible to write down this sentence in machine language. I am a very good language. I am a very good language एक सेंटेंस है. अगर मैं बोलूं इसे मशीनी लैंग्वेज में लिखो, सो अकेला आई का ही 10101 हो गया. बट ऐसा अगर सिर्फ आई का ही अगर हम कंसीडर करें, तो अगर हम एक एक इसका सिंटैक्स का कंसीडर करें तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? स्पेस इज आल्सो काउंटेड. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. And now 23 multiply with the 8 because each and every letter is written in the 8-bit format. So it is not possible to write down a machine language to a computer. Not possible. So solve this problem. There is a one mediator is using for a human language and a machine language, that is called programming language. Like when you are going to Japan and the person which you going to interact, that is knowing the Japanese language and you knowing the Hindi language, but there is a common language you have, both are known, that is English. So you and Japanese person can communicate with English language. So same as in computer language, the computer machines या CPU known machine language and you known English language,
So the programming language is like that. We make some syntax which is used like a English language, but this syntax is also working for a machine language. So this is called your programming language. Okay. So in your IP subject, you are going to teach programming language, but first thing you clear about the IP, that the word says already what is the meaning of IP. IP की जो फुल फॉर्म है वो आप गौर से देखिए क्या है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस. द सेकंड वर्ड ऑलरेडी सेज व्हाट द मीन प्रैक्टिसेस. We need this word in your 11th and 12th practices. Suppose मैं आज आपको बोलूं कि आपको 2 साल बाद आर्चरी के कंपटीशन में जाना है और आपको आर्चरी बिल्कुल नहीं आती. सो व्हाट यू डू, आप आज से आर्चरी की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे. सेम एज आईपी के साथ होता है. इफ यू आर गोइंग टू टेक द आईपी एज अ 5th सब्जेक्ट, आपको इस चीज पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस. आईपी में ना आप कुछ रट सकते हैं, लाइक मैं आपको बोल रहा हूं एमएस वर्ड है. एमएस वर्ड में आपने पढ़ लिया कि बी क्या होता है, बोल्ड करता है, वो इटैलिक करता है, अंडरलाइन करता है, टाइप कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक है. या इन केस यानी गेम जो आप कंप्यूटर पे खेलते हैं, अगर आपको शुरू में जब कोई गेम खेलने जाते हैं तो आपको उसके आइडियाज नहीं होते, आप उसको खेलते हैं 4 बार 5 बार खेलते हैं और 10वीं बार जब खेलने जाते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं. सेम एज यहाँ होता है. यहाँ भी आपको प्रोग्राम्स बनाने होंगे, मॉड्यूल्स बनाने होंगे और उन मॉड्यूल्स पर बार बार प्रैक्टिस करनी होगी. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें परफेक्शन आएगा. आप सोचो इसको मैं रट के आईपी को पास कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है. अगर आप रटने के हिसाब से आईपी सब्जेक्ट के लिए आए हैं तो आप आज ही अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें. आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये क्लियर है. और प्रैक्टिस मतलब आपको प्रोग्राम्स दिए जाएंगे. जैसे प्रोग्रामिंग भी ऐसा नहीं कि बोलोगे सर हम तो आज से गेम बनाना सीख जाए, ऐसा नहीं है. अगर मैं बोलूँ आपको स्टोरी लिखनी है तो सबसे पहले आपको स्टोरी के लिए फर्स्ट, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आपको जापानीज बिल्कुल नहीं आती और आप बोल रहे हो कि सर मुझे जापानीज में स्टोरी लिखनी है, तो सबसे पहले मुझे जापानीज के आपको अल्फाबेट सिखाने पड़ेंगे. देन अल्फाबेट्स के बाद मुझे उसके आपको टेंस सिखाने पड़ेंगे. मुझे उसके टेंस सिखाने पड़ेंगे आपको. टेंस के बाद मुझे उसके आपके फिर आगे पैसिव एक्टिव ऐसे. सेम एज यहाँ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है कि आप आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अटेम्प्ट की और कल से आप गेम बनाने सीख गए. एक गेम को बनाने के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 साल लगता है और उसमें भी 7-7, 8-8 हजार लोगों की टीम काम करती है और सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, ठीक है. तब जाके एक गेम तैयार होता है. या आप सोच रहे हो कि सर मैं आज आईपी ले ली, मैंने कल से हैकिंग सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं है. आपको इस चीज के लिए आपको पहले एबीसीडी से शुरुआत करनी होगी. तो आपके 11th में आईपी की एबीसीडी है. फिर आपके पास आगे कॉलेज आएगा, आपके पास कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, इंजीनियरिंग में जाते हैं अगर आप लोग, या फिर आप लोग ने अगर कॉमर्स लिए तो आप अगर बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, तो फिर आप इसके डेप्थ लेवल तक पढ़ेंगे और देन डेप्थ लेवल पढ़कर आप आराम से जो करना चाहे वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में. तो आईपी की अभी आपके 11th-12th में सिर्फ एबीसीडी के फॉर्म में है कि हम सिंपल स्मॉल मॉड्यूल्स प्रोग्राम कैसे बनाते हैं. तो हम जो आईपी को यूज करके बनाएंगे वो हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर विच इज यूज ऑन अ सिस्टम. एक सॉफ्टवेयर गेम भी हो सकता है, आपका जनरली डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, आपके यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब आपके सॉफ्टवेयर है. तो एक सॉफ्टवेयर के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है. एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, ठीक है. फ्रंट एंड एंड बैक एंड. तो फ्रंट एंड में जो यूज होती है वो होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है. और बैकएंड में जो यूज होते हैं वो आपके होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आपके कोर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो तो है पाइथन. अब से पहले लास्ट ईयर तक आपके जावा थी, अब आपके पाइथन आ गई क्योंकि दिस इज द एडवांस लैंग्वेज और इसमें काफी कुछ आपको मतलब पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोई फंक्शंस यूज करने होते थे तो उनके अपने अपने फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ता था. यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है इन चीजों की. आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत शॉर्ट कर दिया गया है पाइथन में. और डीबीएमएस में आपके कोर्स में है माईएसक्यूएल. तो जब मैं आगे की क्लासेस आपकी लूंगा तो मैं आपको सबसे पहले माईएसक्यूएल से इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा, देन फिर मैं पाइथन पे मूव करूंगा, ठीक है. बट मैं आपको ये बता देता हूँ व्हाट द टर्म्स ऑफ दिस फ्रंट एंड बैक एंड. जैसे सपोज करो आप किसी कार शोरूम में जाते हैं,
तो कार शोरूम में क्या उनके पास आप जब वहां जाते हैं कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, पूरा अच्छी सी स्मेल आ रही होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, बिल्कुल 3-4 कारें खड़ी होती है, ऐसे हाइजीन कार होती है, बिल्कुल उनमें इतना सा डस्ट का भी पार्टिकल नहीं होता, और इतनी स्मार्ट लगती है कार है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव इतने स्मार्ट होते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज इट्स अ फ्रंट एंड। वो आपको एक एज अ व्यू दिया है। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब में सारी चीजें कितनी मैनेज होती हैं, प्रॉपर वीडियोस आ रहे हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, फेसबुक पे जाते हैं आपके इधर आपके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इधर वो आ रहा है, तो वो सारा डिजाइन होता है पूरा, वो सारा काम फ्रंट एंड करता है। बैकएंड क्या करता है? क्या आपके शोरूम वाले के पास 3 ही कार है क्या? उसके पास बहुत सारी कार है, लेकिन वो अपने सारे के सारी कार्स को एक उसका जो वेयर हाउस होता है वहां पर रखता है। वहां कार लाइन से खड़ी होती है, वहां जब कार आती है ना तो धुल के ही आती है, वहां तो हमेशा डस्ट रहती है, वहां आपको कोई अच्छा सा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा, आपको कोई चाय पाने के लिए नहीं पूछेगा। वाई? बिकॉज इट्स अ बैक एंड। सेम एज आपके प्रोग्रामिंग में भी माइस्क्वेल है, वो बैक एंड का काम करती है। क्या करती है बैकएंड का? ये टेबल्स के फॉर्मेट में पूरे डेटा को स्टोर करके रखती है, जब भी फ्रंट एंड रिक्वेस्ट देगा वो आपको बैकएंड में डेटा दे देगी। सेम है जैसे आप YouTube पे कोई वीडियो सर्च करते हैं तो वो वीडियोस की पूरी लाइब्रेरी एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर है। आपने जैसे YouTube पे वीडियो सर्च किया हाउ आई लर्न पाइथन लैंग्वेज, जैसे आप ये सर्च करोगे उस लाइब्रेरी में जितनी भी टेबल्स के अंदर इस कंटेंट से रिगार्डिंग वीडियो होंगे वो सारे के सारे आपके सामने दे देगा। तो वो देगा कैसे? वो आपको टेबल के फॉर्मेट में नहीं देगा, उनको वीडियोस के फॉर्मेट में देगा। मतलब यहाँ पर काम किसने किया? फ्रंट एंड ने। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही तरीके से जुड़ सकते हो किसी सॉफ्टवेयर के फ्रंट एंड से। बैक एंड उसकी हेल्पिंग के लिए काम आता है। तो आप एज अ डेवलपर काम करोगे तो आप दोनों पर काम करोगे, बट एज अ यूजर हम केवल इसी को यूज करते हैं। क्या कभी आपने फेसबुक का बैकएंड देखा है? क्या कभी आपने यूट्यूब का बैकएंड देखा है? ना। क्यों? क्योंकि यू आर अ यूजर ऑन इट। अगर आप उसके डेवलपर होते तो आप उसका फ्रंट एंड भी देख सकते थे और उसका बैक एंड भी। जैसे फेसबुक में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको पता है इसका बैक एंड कैसे डिजाइन है, उसका फ्रंट एंड कैसे डिजाइन है, ठीक है। सो आज की आईपी की क्लास में ज्यादा नहीं लूंगा आप लोग की। आज मैंने सिंपल आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है आईपी के बारे में कि एक्चुअली आईपी में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये आईपी कहाँ आपकी हेल्प करेगी और आईपी से आप क्या सीखेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप लोग इंजीनियरिंग करते हैं या बीसीए एमसीए करते हैं तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजफुल है। और आज के केस में आपके अगर अड़ोस पड़ोस में कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या कोई भी है तो आप ये देखोगे मोस्टली सबकी जॉब यहीं पर होती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज। कोई टीसीएस में काम कर रहा है, कोई इन्फोसिस में काम कर रहा है, कोई फॉरेन जाके काम कर रहा है, कोई पूछेंगे बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब यही है, क्योंकि आज भी मार्केट के अंदर अगर आप एक गुड डेवलपर हैं, ठीक है, डजंट मैटर आपने एमसीए किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, अगर आप एक गुड डेवलपर हैं तो मार्केट के अंदर आज भी हर साल सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर कम से कम 1 लाख वैकेंसीज निकलती हैं, 1 लाख वैकेंसीज, ठीक है। ये एक ऐसा क्राइटेरिया सेक्टर है जहां कभी भी वैकेंसीज कम नहीं पड़ेंगी। इवन इन फ्यूचर वर्ल्ड ये वैकेंसीज और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं अगर आप लोग जिस मीडियम से पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन मीडियम है। सोचिए अब जूम ऐप आई है, अब इसको ही देखकर 10 डेवलपर्स और आएंगे मार्केट में और वो अपनी ऐप निकालेंगे। तो ऐसा ही होता है। शुरू में जब व्हाट्सएप आया था तो व्हाट्सएप ने अपनी जब ऐप शुरू की उसके बाद कई डेवलपर्स आए, कईयों ने अपने ऐप शुरू किए। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि when you are going to study about the IP, so basically आपको एक ही चीज पर फोकस रखना है, प्रैक्टिस। इफ यू गोइंग टू द प्रैक्टिस आपको आईपी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और इतनी इजी है आईपी कि योर 11th एंड 12th कोर्स विल बी सिमिलर, ठीक है। 90% कोर्स 11th और 12th का सेम सा ही होगा। तो जो आप 11th में स्टडी करके जाएंगे वही आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। सो जो भी अगर आपको आईपी से रिगार्डिंग डाउट्स हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप या तो ऑडियो मैसेज में या वीडियो मैसेज में अपने क्लास टीचर को फॉरवर्ड कर दे, क्लास टीचर मेरे को कर देगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइस्क्वेल के बारे में बताऊंगा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, गुड बाय।